ये देखिए, ऐसा है कि सिनेमा और सोसाइटी का वास्ता ऐसा है कि जैसे आप दो मिरर एक दूसरे के सामने रखते हैं, कौन किसे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिनेमा सोसाइटी से कितना इन्फ्लुएंस होता है और सोसाइटी सिनेमा से कितनी होती है। मैं बुनियादी तौर से सोसाइटी को सिनेमा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैं समझता हूँ सोसाइटी इज मच मोर पावरफुल देन सिनेमा, बिकॉज सिनेमा जो आदमी बना रहा है उसका पहला डिजायर ये है कि ये चले, लोग इसे देखें। तो वो पुट्स हिज ईयर टू द ग्राउंड टू नो कि भैया हो क्या रहा है ग्राउंड पे। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली थ्रू सम प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वही चीजें फिल्म में आती हैं जो सोसाइटी में वह आना शुरू हो गई हैं। मे बी दे हैव नॉट फाउंड द वर्ड्स, मे बी दे हैव नॉट फाउंड द इमेजेस। सिनेमा टेक्स दैट अनडिस्क्राइब्ड intangible feeling or thought and takes it and turns it into words, scenes, images. तो फिर आदमी का हाँ यही तो चाहिए था हमको। और जब तक ये रेपो होता है तो फिल्म कामयाब होती है। अगर ये रेपो आपका सोसाइटी से नहीं है तो आपकी फिल्म नहीं चलेगी। Message will never carry entertainment. Entertainment will always carry message. Sure, yeah. It's like that. That's the carrier. Yeah. See, the I've not seen. message will never carry the entertainment. Entertainment will always carry the message. I've not seen Arjun Reddy or even Kabir Singh. But it's a default setting of fame that you are by default an opinion leader. Something is expected out of you. Why don't we see cricketers, sports persons smoking openly? They can't because they're sports persons. You know. So eventually, messaging has to be right in a way. So that, it's some minds are very fickle. Like when I was 15, I saw Mohabbat Hai, I thought I should just break the gates of my school. Yeah, I went and cut my hair after seeing Kuch Kuch Hota Hai. But whether we like it or not, cinema and cricket, whether we like it or not, are the two most influential things. Yeah. And you've got to do that responsibly. कबीर सिंह से मेरा प्रॉब्लम क्या था कि ठीक है वो डॉक्यूमेंटेशन है, करेक्ट बात है, सीधा साफ डॉक्यूमेंट किया हुआ है। वहां पे प्रॉब्लम क्या है, एक्सटेंट नहीं सोचा किसी ने कि ये लोगों को किस एक्सटेंट तक इम्पैक्ट करेगा। तो ये दो ऐसी चीजें जो आपको बहुत सोच समझ के और बहुत बैलेंस करके चलनी चाहिए। आपका इंटेंट ट्रू रहे, आप कबीर सिंह को दिखा सकते थे, वो प्रॉब्लम नहीं है। उस कैरेक्टर का लाइट प्रॉब्लम है कि उसको जिस लाइट में पोर्ट्रे किया गया वो बिल्कुल कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है। तो लोग उसको फॉलो करते हैं कि ठीक है इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, लास्ट में लड़की मिल ही जाती है। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम थी कि इसका इट साउंड्स वेरी as if that whoever made this lacks a very basic understanding of morality. He's playing with us, right? Like, because he's called the film Animal. So the fact is that yes, there is a film where the character in it is supposed to be animalistic. At the same time, the film also has really cool music. It has this banging background music that there's this great soundtrack that it has. Anytime that there is something problematic that is being shown on screen, it is being shown through a really cool soundtrack, which almost goes on to say that you must like this moment, that you must almost clap at that moment, that this is not an animal moment or a villain moment but a hero moment. And then I keep hearing from everyone who's gone on to theaters to watch this film that they were shocked or maybe possibly unsurprised that people are clapping when a misogynistic line is being said, or they're clapping when something terrible happens on screen, or they're laughing at it. And that's the problem with a film like this, right? It is the intent of the filmmaker. It is the lens with which this film is being made, and it is being done only to showcase that I can do this. I remember an argument Abhay Deol was giving about Devdas, कि देवदास को इतने सालों से पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा रहा है, दो ही इज अ वेरी ट्रबल मेकिंग कैरेक्टर. You should not do it. He's an antagonist. Exactly. I don't understand why he's portrayed as a protagonist. So in Dev D, they make sure कि वो एक failure इंसान दिखे, वो romanticize ना करो आप उससे. So that's the way that he came up with the idea of Dev D, कि हमें देवदास को एक नेगेटिव लाइट में दिखाना है, एक फेलियर की लाइट में दिखाना है, ना कि शाहरुख वाली देवदास की तरह उसको एक रोमांटिसाइज फिगर की तरह दिखाना है. तो दैट्स द वे दैट यू आर टॉकिंग कि इंटेंट क्या है और प्रिस्क्राइब क्या कर रहा है. जो मैं उस बात अब उसमें मतलब व्हेन आई से डॉक्यूमेंट, आई मीन कि आपने जो कैरेक्टर सोचा उसको ट्रूली पोर्ट्रे करो कि उसके ये बिहेवियर्स है. आई सीन देवदी, इट इज वेरी ट्रू टू द कैरेक्टर. आपको सब दिखता है पर आपको ये भी बताया जाता है कि ये गलत है या इसके कॉन्सिक्वेंसेस उस इंसान को हार्मफुल रहेंगे. तो
तो ये दो चीजें, actually that is a very good example of a film that manages that very well. True. So those two things, as a storyteller, I think somebody should know how to balance. आज आपको एक पतिदेव जो रात को शराब पी के कोठे से मुजरा सुन के आके बेड पे आके गिरता है नशे में, और पत्नी उसके जूते उतार रही है, सीन नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो और ऐसा हो सकता है कि अभी सोसाइटी में 2-4 ऐसी पत्नियां हों जो जूता उतार देती हों, लेकिन अब वो आइडियल नहीं है, वो फिल्म में नहीं आ सकता। और ये पत्नियां भी अब कुछ ही दिनों की हैं, ये भी समझ लीजिएगा, ये भी नहीं रहने वाली। तो चीजें चेंज हुई हैं। अब होता क्या है, जब आप एक एडिफिस को तोड़ते हैं तो उसका बहुत सा मलबा, उसका एक ढेर जमा होता है थोड़ी देर को, इसलिए कि नई वैल्यू सिस्टम जो है ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, उसमें कंफ्यूजन भी होते हैं कि आपने जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स थे उनको तो रिजेक्ट कर दिया, नए नॉर्म्स क्या हैं, नई मोरालिटी क्या है, अभी ये कंफ्यूजन में है, ये थोड़ा सा वेग है कि, और कोई डिफाइन नहीं कर रहा। उसका डिफाइन नहीं करने का रीजन ये है कि लिबरल ये सोचता है कि मैंने डिफाइन किया तो somebody will out liberal भी। अच्छा, तो आपका ये ख्याल है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा होना चाहिए तो बेचारा मारा जाएगा। और जो कंजर्वेटिव है वो इसलिए नहीं करता कि उसे मालूम है कि जब मूवमेंट मैंने किया तो आइदर आई विल बी रिजेक्टेड वेरी बैडली और आई लूज अ लॉट ऑफ टेरिटरी, और दोनों काम वो नहीं चाहता। तो ये डिफाइन नहीं हो रहा। इस कंफ्यूजन में कुछ अजीब अजीब बातें भी हो जाती हैं जो अनडिजायरेबल है, जरूरी नहीं है। मगर ये प्रोसेस है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग इट, बिकॉज आई नो वन हैज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस टू रीच अ प्लेस वेयर आइडियल्स एंड मोरालिटीज एंड नॉर्म्स आर पिन शार्प क्लियर, जो अभी नहीं है। एक पिक्चर थी जब तक है जा, ये चोपड़ा साहब की बनाई, ये डायलॉग अगर 50s की फिल्म में होता, फिल्म एक डायलॉग पे बैन हो जाती। वो डायलॉग था कि हीरोइन कहती है कि मैं शादी करूंगी, लेकिन पहले मैं दुनिया की हर नेशनलिटी के एक आदमी के साथ सोऊंगी, उसके बाद शादी करूंगी। भैया तुम अगर एम्पावर्ड होना चाहती हो तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। विदाउट वर्किंग सो हार्ड यू कैन अचीव एम्पावरमेंट। मगर ये एक ब्रवाडो है, इसको मैं लुक डाउन नहीं कर रहा हूं, आई एम लुकिंग एट इट विद कंसर्न एंड सिंपैथी, आई अंडरस्टैंड इट। इस वक्त उसको वो बात कहनी है जो उसे शक है कि कंजर्वेटिव को बुरा लगेगा। अब तो मैं वही बोलूंगी, बरसों का गुस्सा है, वो निकल रहा है। उसके बाद एक कहीं आप पहुंचेंगे इवन ग्राउंड पे, नई वैल्यूज, नए सिस्टम्स, नए तरीके डेवलप होंगे। मुझे तो यही चीज गलत लगती है कि शादी के बाद लड़की लड़के घर चली जाती है, यही रॉन्ग है। पहली गलती तो यहीं से शुरू होती है। So the concept of today is what's the role of an artist in a society, and what I came up with the research and what I think is rightly fit is artists push the boundaries in any way possible and they make the culture move forward.